I have started recording now, है ना? देखिए, during the last class we have talked about the classical theory of diamagnetism, and that you did in BSc also ना, classical theory करी हुई है आप लोगों ने, जिसमें कि there is Yes, a ma'am. Langevin formula for paramagnetic susceptibility, and with this formula you get the susceptibility in terms of N, Z, E, M, and average of R square. Now you know N is the number of atoms per unit volume, Z is the atomic number. It gives total number of electron. E is the mass of electron. Me is the mass of electron. E is the charge on electron. And the average of R square is the average distance of the average mean square distance of electron from the nucleus. So basically average R square is average X square, average Y square, average Z square. Okay. So this is your classical formula. And as you know, what is the basic difference between diamagnetic and paramagnetic substances? कोई बताएगा आप में से क्या डिफरेंस होता है? देखिए जो Diamagnetic gets repelled and paramagnetic gets attracted. इफ आई टेक एट द बेसिक लेवल, जो आपका जो क्यों डायमैग्नेटिक होते हैं और क्यों पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिज्म जो होती है दैट इज ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ऑर्बिटल मोशन क्या होता है कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन ए ऑर्बिट, ओके, so basically it is equivalent to a current carrying loop, and you know a current carrying loop is equivalent to a magnetic dipole, it has a dipole moment. moment. कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में मूव कर रहा होता है, उसमें हम अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ओके, तो वो जो डाइपोल उसका होता है वो अपने आप को फील्ड डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है, और अलाइन तो नहीं करना चाहता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन या तो एक्सेलरेट होगा या उसमें डी एक्सेलरेट होता है। ओके, तो उसमें कोई परमानेंट डाइपोल अपना नहीं होता। और पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन दोनों होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है। इसमें केवल ऑर्बिटल मोशन ही कंट्रीब्यूट करता है। और हम बता चुके हैं कि जो आपका ऑर्बिटल मोशन हो या आपका स्पिन मोशन हो, बोथ आर क्वांटम फिनोमिना। क्योंकि जो ऑर्बिटल मोशन होता है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज क्वांटाइज्ड, इट कैन नॉट हैव ऑल पॉसिबल वैल्यूज, इट इज क्वांटाइज्ड। ये हमेशा h/2π के मल्टीपल में होता है, या h क्रॉस के मल्टीपल में ही हो सकता है। ओके, इस तरह जो स्पिन है वो भी एक क्वांटाइज्ड है, स्पिन का भी जो मोशन है क्वांटाइज्ड है। इसलिए क्वांटम थ्योरी से चीजों को इंटरप्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अभी तक तो आपने जो बात की थी यूजी लेवल पे, यू डिस्कस विद द क्लासिकल थ्योरी। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वांटम थ्योरी ऑफ डायमैग्नेटिज्म एंड देन we will discuss the quantum theory of paramagnetism. And you know, when we switch to the quantum mechanics, we start with Hamiltonian, है ना? आप बात करते हैं in terms of operator। अगले पे अगर हम आते हैं, so before starting anything, I will write down, we will talk about the Hamiltonian of an electron in a magnetic field. So before that, we will talk about Hamiltonian of an electron without a magnetic field and with a magnetic field. So if there is no magnetic field, the Hamiltonian is kinetic energy plus potential energy. Okay, and if an electron has charge E and the force acting on an electron when if there is no magnetic field, it will experience a force minus E into E. But when we apply a magnetic field, it will experience this force. There will be an additional term E/c V cross H. ये आपका और एक टर्म आ जाएगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। नाउ इफ वी राइट डाउन मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर पोटेंशियल, you know the vector potential del cross A gives you the magnetic field. Okay, so the Hamilton, now we know the force acting on the electron in the presence of magnetic field. So if we write down Hamiltonian is the sum of kinetic energy and potential energy, and the spin motion of the electron will be neglected. We are talking about diamagnetism, so we will focus only on the
एंगुल ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना, स्पिन की बात नहीं करेंगे। फिर हम आपसे कहा जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर्स। ओके, तो वी द मोमेंटम ऑपरेटर पता है आपको क्या होती है, पहले भी हम बात कर चुके हैं, इट इज माइनस आई एच क्रॉस डेल, where del is I del by del x, j del by del y, k del by del z. Okay, so if we write down Hamiltonian in terms of operator, in rather than writing down half mv square, if we write down m square v square upon m. Okay, so m square v square is basically p square, and p square is minus I h cross del square. Okay, ये हो जाएगा, so your Hamiltonian will become p square by 2m, where p is minus I h cross del फिर डिवाइडेड बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी v. ओके, और इसको अगर आप करेंगे तो आई स्क्वायर आपका -1 आ जाएगा, तो एक माइनस साइन बाहर आ जाएगा, एंड यू विल हैव h स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v. So this is basically Hamiltonian of an electron when it is moving in a orbit. Okay, and we are not taking into account the spin motion of the electron. Okay, but up till now we have not applied the magnetic field. When we apply the magnetic field, then this moment p will change. So in the absence of magnetic field, p is equal to mv, and in the presence of magnetic field there will be additional term q by c into a. ओके, ये एडिशनल टर्म आपका आ गया है, ये देखो ये एडिशनल टर्म आ गया ना आपका यहाँ पे. ओके, एंड वी कैन राइट डाउन a in terms of मैग्नेटिक फील्ड. A इज द वेक्टर पोटेंशियल. ठीक है, तो आपको यहाँ P की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, mv प्लस q बाई c इंटू a. q क्या है, इट इज द चार्ज ऑन ए पार्टिकल, एंड in case of electron this q is basically e. E is the charge. Okay, and it is minus e because electron has negative charge. So the m into v will become p minus q by c. इसको इधर ले आएंगे हम a, and this is equal to minus I h cross del plus e by c. यहाँ जब q को minus e रख देंगे तो it will become e by c into a. Okay, so now we have like changed value of momentum, which is this is your m into v. Earlier m into v was just equal to minus I h cross del, and now we have additional term due to magnetic field. So because of this, the Hamiltonian in the presence of magnetic field will be, so we will put this value of m into v, and we have a new Hamiltonian. क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक मिनट हम नीचे आ जाएं. यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे माइनस आई एच क्रॉस डेल की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस आई एच क्रॉस डेल प्लस ई बाय सी. ओके, और इसका स्क्वायर करेंगे आप. ये जब इसका आप स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वेक्टर्स हैं आपके, ये डेल एक वेक्टर जो हम बोल्ड दिखा रहे हैं, यहाँ पे बोल्ड दिखाना रह गया है, जहाँ आपको देंगे मैटर, जो भी डेल है ये भी एक वेक्टर है. सो ऑल द वेक्टर्स आर शोइंग लाइक शोन एज ए बोल्ड क्वांटिटी. ठीक है, तो ये जो वेक्टर को जब आप वो करते हैं मल्टी स्क्वायर लेते तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक टर्म आएगा, इसको एक्सपेंड करके देखिए. ए पहला टर्म क्या है, ये e बाई सी इंटू ए का स्क्वायर, ये आ गया. ठीक, 1/2m तो ये आ ही रहा है, ये प्लस स्क्वायर ऑफ दिस which is h square plus del square, and this term will be like I h cross e by c a dot del plus del dot a. Okay, you are taking like this is a vector and this is a vector, so when you take the square you have to take a dot b and b dot a. Okay, so you have terms like this. इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो पहले हम ये टर्म रख लें डेल वाला और एच स्क्वायर बाई 2m, फिर सेकेंड टर्म आपका आ जाएगा ये वाला हम ले लें. ठीक, आई एच क्रॉस ई बाई सी, और यहाँ 2m को कंबाइन कर लिया हमने, और थर्ड टर्म हमने लिया है ई बाई सी ए एंड 1/2m प्लस वी. तो इसको हमने केवल रीअरेंज कर लिया है. एंड फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, it is kinetic energy in of electron in the absence of magnetic field, or because of the presence of magnetic field there are two additional terms. देखिए एक टर्म यहाँ पर आ गया, तो एक टर्म, ये दो टर्म्स आ गए हैं.
और potential energy is the same. So basically now you have a modified Hamiltonian with two additional terms, and later on I will show you like this term is the paramagnetic contribution and this term is the डायामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन. क्यों है वो हम बताएंगे अभी आपको हम. ठीक. तो इट इज जस्ट सिंपल मैथमेटिक्स. केवल आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करा है और उसका स्क्वायर लिया है, उसके बाद आप आगे यहाँ पे आए हैं. अब यहाँ पे आपने देखा कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड H है दैट इज डेल क्रॉस A, एंड सपोज वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन. if the magnetic field is in the Z direction, then Hx is equal to Hy and 0. X और Y component 0 हो जाएंगे and total magnetic field will be equal to Hz. For the sake of simplicity of calculations, we are assuming the direction of coordinate axis such that the magnetic field is along the Z direction. And if the magnetic field is in the Z direction, then it should satisfy this condition. And in order to satisfy this condition, we can choose Ax, Ay like this and Az equal to 0. Now we want to check whether it is the right way of choosing Ax, Ay and Az. आपका H क्या होता है? डेल क्रॉस A, है ना? डेल क्रॉस के A को आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट आपका. ठीक है. तो इससे वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर आपकी? इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? ये करके देखिए क्या आ रहा है. इसको अगर सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, यू विल गेट Hz. ओके. इट मींस like we can choose Ax, Ay and Az like this, and if we take like this then only H is equal to Hz. Okay. तो अब इस Ax और Ay और Az की वैल्यू हम लेके आगे बढ़ेंगे जो हमने ऊपर चूज करी हुई है. क्या हमने Ax को लिया है? Ax is minus half y into h, Ay is plus half x into h and Az is equal to 0. Now if we solve A dot del plus del dot A, just substitute the value of A, है ना? और यहाँ पे क्या रख देंगे? यहाँ भी A की वैल्यू रख देंगे. तो A की वैल्यू जो आपकी क्या आ रही है, और उसके बाद अगर A डॉट डेल करेंगे तो क्या आएगा? इसको सॉल्व बताइए. सॉल्व करके A डॉट डेल क्या आएगा? A डॉट डेल इज Ax इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस Ay इंटू डेल बाई डेल वाई प्लस Az इंटू डेल बाई डेल जेड. यहाँ पे क्या आएगा? केवल ओनली Ax एंड Ay विल कॉन्ट्रीब्यूट, Az इज 0. So you will get these two terms. And what is del dot A? Del dot A is 0. Del dot A is 0. So this term is equal to A dot del, which is equal to this term. Okay. And now you know ये क्या होता है? X del by del Y और Y del by del X. ये कभी देखा हुआ लग रहा है? क्या हो सकता है ये? देखिए आपको P पता है, माइनस I H क्रॉस डेल होता है ना, momentum operator. Okay, where del is I del by del x, J del by del y, K del by del z. Okay, so therefore Px कितना हो जाएगा? I H cross del upon del x. ये Py is I H cross del upon del y. I am not interested in Pz now. तो यहाँ देखिए एक टर्म आपका ये आ रहा है, जो यहाँ भी ये टर्म आ रहा है. It means we can write down this term. This term is basically this term. This term in terms of Px and Py, and if you substitute like del by del x in terms of Px and del by del y in terms of Py, so we will get this value. Okay, ये इस टर्म की वैल्यू वहां पर आ जाएगी जो ऊपर हमने दिया था. यहाँ पे क्या था ये, है ना? क्योंकि आपको ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ पाएगा ना. जब यहाँ करेंगे डेल बाई डेल एक्स रखेंगे क्या हो जाएगा? P बाई आई एच क्रॉस. ये रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगा आपका. सो देयरफॉर फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन हैमिल्टोनियन विल बिकम माइनस H क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर, विच इज द टर्म that you have in the absence of magnetic field. And second term like del dot A and A dot del you can write down in terms of xpy minus ypx. And this is your, like this term I called as a paramagnetic contribution, and this term I called as a diamagnetic. That I will show later on that why I called this as a paramagnetic and this as a diamagnetic contribution. बस यहीं से आपकी क्वांटम
जो थ्योरी है डायमैग्नेटिज्म की शुरू होती है। ठीक, देखें रिकॉर्डिंग दिख रही है आप लोगों को, हो रही है? Yes, ma'am. Yes, हाँ। कितने लोग हैं, Yes, कितने लोग आ गए हैं Yes, आपके ma'am. अभी, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं? मैम 31 लोग। 31 है, ओके। 31. ना अब अगर यहाँ पर आप आए, ये आपने देख लिया कि L इज इक्वल टू R क्रॉस P होता है, और LZ कितना हो जाएगा? XPY Yes. माइनस YPX। ये टर्म क्या हो जाएगा? YP. दिस इज नथिंग बट LZ। ओके, तो यहाँ पे Yes. अगर आप LZ रखेंगे, एंड यू नो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन LZ एंड म्यूZ, पता है क्या होती है LZ और म्यूZ में? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू बोर मैग्नेटॉन, Yes. है ना? E/2mc माइनस करके आता है ये। तो वी कैन राइट डाउन LZ in terms of magnetic moment, and if you write this mu z equal to E/2mc into LZ, so we will get this value of magnetic moment in the Z direction. It means we can write down this terms in terms of mu z, क्योंकि इसका रिलेशन LZ का है और LZ का रिलेशन है mu z से। ओके, तो ये टर्म आपका mu z के फॉर्म में आ जाएगा, एंड mu z की वैल्यू ये आ गई, सब्स्टिट्यूट करिए आपने। वी हैव नाउ in place of A dot del and del dot A, we have minus half H mu z, this term। ये इक्वल नहीं होगा, प्लस साइन होगा, है ना? ठीक है, तो ये फिर आपके दो टर्म आ गए। अब ये टर्म क्या लगता है आपको देख के? दिस टर्म इज समथिंग लाइक म्यू डॉट एच, है ना? H into mu z और mu x and mu y is 0, so this is mu dot h। और mu dot h क्या होता है? मैग्नेटिक एनर्जी होती है आपकी, है ना? यानी इसका रिलेशन आपका मैग्नेटिक एनर्जी से है, और ये है आपका E²/2mc² A²। और ये टर्म क्या है? दिस टर्म इज द दिस टर्म हैज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम परमानेंट डाइपोल। देखिए म्यू क्या है? म्यू इज द परमानेंट डाइपोल, और ये टर्म में कंट्रीब्यूशन म्यू का आ रहा है। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज ए पैरामैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन, and this term do not have contribution from the permanent dipole, while this term is due to A। A क्या है? Why there is A? A is because there is a magnetic field। okay? अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा देंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हटाने से ये 0 नहीं होगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज डायमैग्नेटिक कंट्रीब्यूशन, बिकॉज दिस मैग्नेटिक फील्ड it is due to presence of magnetic field only। okay, while this is magnetic energy। ये आपकी आ जाएगी। उसकी हम ये और बात भी करेंगे आगे थोड़ी सी कि क्यों हम इसको कहते हैं पैरामैग्नेटिक, किसको डायमैग्नेटिक क्यों कहते हैं हम ये। नाउ वी कंसीडर द थर्ड टर्म, ये वाला जो टर्म है ना आपका, अभी हमने इसकी बात की थी, इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। पहले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लग रहा था, डेल डॉट ए डॉट डेल, हमने सिंपली म्यू के टर्म में रख लिया है। अब इफ वी टॉक अबाउट दिस टर्म, A is equal to ax square, a square is ax square plus ay square and az square, and az is 0, so we can write down this term as this into ax square plus ay square। तो ये क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट कर दें अगर इसमें हम a स्क्वायर की जगह पे ax स्क्वायर इंटू ay स्क्वायर, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ ax एंड ay। जो शुरू में इक्वेशन दिखाई थी क्या थी? ax इज माइनस वाई एच डेल बाई डेल वाई, ऐसे कुछ वैल्यू थी ना उसकी, और ए वाई की वैल्यू भी थी, हाफ YH। क्या थी? माइनस हाफ YH। हाँ, माइनस हाफ वाई एच डेल बाई डेल एक्स, ये ए एक्स है और ये आपका ए वाई था। तो इफ वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज ऑफ ए एक्स एंड ए वाई, वी विल गेट दिस टाइप ऑफ टर्म। क्या आ जाएगा यहाँ पर? ये एक्स स्क्वायर आएगा और ये वाई स्क्वायर आएगा। लेकिन आप क्वांटम मैकेनिक्स में आप एवरेजेस की बात करते हैं, आप टाइम एवरेज लेते हैं, तो एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर एवरेज ऑफ वाई स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यहाँ जब ए वाई की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ऊपर से। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है? रो स्क्वायर। ये हमने उसमें भी कराया था ना आपको, जब हमने क्लासिकल थ्योरी की बात की थी, रो स्क्वायर है, एंड रो स्क्वायर का रिलेशन Yes, होता है ma'am. 2/3 आर स्क्वायर।
What is the difference between rho and r? by 3. क्या होता है? r क्या है और rho क्या है? Why there is a like difference between rho and r? R 3 डायमेंशनल के लिए और रो 2D के लिए. देखिए यहाँ पे हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका स्पेरिकली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पे एवरेज ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एवरेज ऑफ वाई स्क्वायर. ओके. Yes. कुछ बता रहे थे आप? मैम रो रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस और From the आर axis. रेडियस है. आर रेडियस नहीं कहेंगे उसको आप कहेंगे डिस्टेंस तो ऑफ रो द है हमारी वो इलेक्ट्रॉन. रूट मीन स्क्वायर. हाँ, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. और आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस. ये आर है आपका. वो देख लीजिएगा, पहले भी हमने कराया है, जब हमने लैंग्विन थ्योरी कराई थी, हमने कराया था. Now suppose we have written the H for, this is for one electron, okay, and suppose there are n atoms per unit volume and there are each atom has z electron. So we have to, suppose we want to write this expression for number like unit volume, okay, then we have to multiply with n into z. पहले तो एक इलेक्ट्रॉन के लिखेंगे, फिर आप इसको z इलेक्ट्रॉन के z से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये तो एक एटम की बात हुई. एंड देयर आर n एटम पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर आप वॉल्यूम के टर्म एक यूनिट वॉल्यूम में लिखेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद n into z. ठीक, यहाँ हमने nz से मल्टीप्लाई कर दिया और हमने रो स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया. वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन 23. ठीक ना. इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस अ डाइपोल, क्या है, इन द मटेरियल द करस्पॉन्डिंग एनर्जी टर्म शुड बी क्वाड्रेटिक. जो उसकी बात कर रहे हैं ना, म्यू डॉट, उसकी बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक. अच्छा, अगर डाइपोल इंड्यूस होता है तो बात कर रहे हैं क्या है. ओके. दिस मे बी एनर्जी टर्म एसोसिएटेड विद द डायमेंटिज्म. हम इसकी जो बात कर रहे हैं, अगर आपकी जो एनर्जी होती है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होगी. उसमें मैग्नेटिक एनर्जी होती कितनी है? -12 काई एच स्क्वायर. ये होती है ना. इसका मतलब ये जो टर्म है आपका, ये वाला जो टर्म आ रहा है ऊपर वाला, बेसिकली है क्या, ये पूरे का पूरा एनर्जी ही तो दे रहा है आपको. ठीक है, आ गया, प्रेस हो गया हमसे. ओके. ये क्या दे रहा है? ये टर्म पूरे का पूरा एनर्जी दे रहा है. ओके. ये आपका सेकेंड ऑर्डर टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है. और ये अगर मैग्नेटिक एनर्जी देगा ये टर्म, तो क्या होगा? -12 काई एच स्क्वायर. इसके बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक एनर्जी देगा ये अगर. तो ये टर्म अगर -12 काई एच स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, if you substitute this value -12 chi h square is equal to this, we can find out the value of diamagnetic susceptibility. Okay. ये रेड, अच्छा क्या एरो से रेड कैसा हो रहा है हम कर रहे हैं तो कुछ ये आप लोगों को दिख रहा है एरो कुछ? यस सर. कुछ रेड मार्क दिख रहा है? यस सर. पता नहीं, मैंने नहीं करा, ये अपने आप कुछ हो रहा है. ये मैम स्क्रीन पे एडिटिंग का ऑप्शन होता है. अच्छा, स्क्रीन पे होता है कुछ उसमें. ओके, तो कुछ हो रहा है हमसे. खैर, ये अब क्या है, अगर आप फॉन्ट पेंट आप यूज कर लिया. कुछ यूज कर लिए, नीचे पेन नहीं ऑन है. पेन को बंद कर लीजिए. पेन कैसे बंद होगा? सिंबल बना होगा. सबने पेन यूज कर लिया है. एस्केप से भी नहीं जाएगा बाहर. ये वहीं पे जाके अंडू करना पड़ेगा. कहाँ पे करें अंडू, बताइए. पीछे करें? कंट्रोल Z से देखिए, हट रहा है. हाँ हाँ, रुकिए रुकिए, नहीं हो तो वो हटा. कंट्रोल Z. से भाई अंडू तो वैसे हो ही रहा है. चलिए हम नीचे आके देख रहे हैं. वो उसमें थोड़ी ना होगा, वो बैटर से. मैम माउस यूज कर रही हूं मैम. कंटिन्यू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक मिनट, एक मिनट आ जाओ बेटा, देखो इधर. सब कुछ ये रेड आ रहा है तो ये नीचे नहीं जा रही है स्क्रीन इसकी मेरी. ये मैंने पेन ले कहाँ से लिया है ये वाला? आ गया, चली चल रही है स्क्रीन. ओके, इट इज मूविंग नाउ. स्क्रीन बना रहने दो, आ रहा है.
अब ये आपका यहाँ से क्या आ जाएगी, ससेप्टेबिलिटी जो होगी, दिस इज डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी, यहाँ से करेंगे और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब ये इक्वेशन आपको देखी हुई लग रही है? दिस इज सेम एज व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम क्लासिकल थ्योरी, यानी कि क्वांटम थ्योरी से और क्लासिकल थ्योरी से ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यू आ रही है वो सेम है। दैट इज द कंक्लूजन, डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दोनों से सेम आती है। ठीक है, तो ये आपकी हमने क्या करा। अब अगर आप सम एंड सब्सटेंस की बात करें क्वांटम थ्योरी में जाने से पहले, सबसे पहले हम हैमिल्टोनियन लिखते हैं विद द इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन वी राइट डाउन हैमिल्टोनियन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड देन वी लाइक ट्राई टू सिंप्लीफाई द हैमिल्टोनियन and write down the magnetic field in terms of vector potential. And then from the vector potential, when we substitute the value of del, we try to write down this in terms of a component of angular momentum. Then we convert angular momentum into magnetic moment, and like the ratio is equal to Bohr magneton. And once we have the angular momentum in terms of magnetic moment, we get everything in terms of energy. Okay, and this energy term has two additional contribution, the contribution from paramagnetic like contribution, and there is a diamagnetic contribution. And if we use the diamagnetic contribution term, we get susceptibility, diamagnetic susceptibility, which is same as what we had from the classical theory. Okay, दोनों से वैल्यू इसकी सेम आती है। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे आपका वो है क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म जो हैमिल्टोनियन निकालने वाला पार्ट तो आप कर चुके हैं, ये पार्ट वही रहेगा। ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टर्म, थर्ड टर्म, वी विल यूज सेकेंड टर्म। ओके, एंड देन वी विल प्रोसीड विद दिस सेकेंड टर्म एंड वी विल टॉक अबाउट द क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। अब बताइए कोई क्वेश्चन है आप लोगों के? क्यों? नो मैम। इसमें कोई क्वेश्चंस हैं? अच्छा, डॉक्टर मनीषा गुप्ता जी वाला पूरा हो गया पूरा उनका? यस मैम। उनका तो पूरा हो गया ना, दे भी दिया उन्होंने। अच्छा, आप लोगों के पास बुक है इसकी कि नहीं, डेकर वगैरह की? मैम किटल है इसकी बुक। किटिल है तो डेकर की आपको हम जो Yes, भी ma'am. चैप्टर है उसको हम स्कैन करके भेज दें पीडीएफ बना के, या डेकर ऑनलाइन भी कहीं मिल सकती है आपको? पीडीएफ डेकर है। यस है पीडीएफ है ना आपके पास? मैंने पीडीएफ यस यस मैम। बताइए, जो आपका लाइब्रेरी वाला PDF पोर्टल तो दिया हम लोगों ने, तो क्या आपको उससे वो मिल रहा है कुछ, क्या बोलते हैं वो, एक मिनट, हम जो शेयर कर रखी है हमने बताना चाहते हैं, और शेयर, हाँ लाइब्रेरी से आपको मिल रहा है ये कि नहीं मिल रहा है अभी? जो ई बुक का हमने लिंक भेजा है वो आप लोग कुछ ले पा रहे हैं? ई बुक्स को नहीं ले पा रहे हैं आप लोग? जो लाइब्रेरी से ई बुक्स वाला लिंक जो हमने भेजा था आप लोग के व्हाट्सएप पे कि आप कैसे लाइब्रेरी से ई बुक्स ले सकते हैं, तो वो कुछ आप लोगों को मिल रही कि नहीं? तो मैम लॉगिन आईडी पासवर्ड मांग रहे हैं। नहीं तो उसमें था ना कि लॉगिन कराइए, कैसे तरीका था? ईमेल करिए, करके देखा आप लोगों ने? नहीं, हम ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑनलाइन मिल रही कोई, मतलब वो तो बुक का तो इशू नहीं पड़ रहा है ना अभी आपका? मुझे तो नहीं। यस मैम। बुक तो अगर एक दो को मिल जाएगा तो आप लोग शेयर कर लिया करिए आपस में, अगर ऑनलाइन बुक मिल जाती हैं। दूसरी बात है, जो इसके जो लेक्चर्स हैं आपके ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले, वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका एक हमने जो खोला है हम आपको भेज भी देंगे, वैसे नेट से मिल जाएगा, भेजना इतना जरूरी इसलिए नहीं है कि आपको हम बता रहे हैं, टाइम तो इसमें कम रह गया आपका। एक मिनट, कंटेंट है, एक मिनट, आपको NEPTL वाला जो है, NEPTL वाला जो है यहाँ पर जो इसका है लेक्चर, ये जो लास्ट ईयर भी बताए थे हमने आपको, हाँ रंगराजन का है, प्रोफेसर जी रंगराजन का, NEPTL में भी। ओके, इस लेक्चर के नोट्स भी है मेरे पास, आपको हम मेल भी कर देंगे, लेकिन ये नेट पे भी अवेलेबल है, इनका लेक्चर भी अवेलेबल है ये, जिसमें ये इसकी बात करते हैं, कुछ प्रॉब्लम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग सिंपल तरीके से जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका खत्म हो रहा है, और ये वाला हम आपको NEPTL वाला जो नोट्स तो हम भेज देंगे ये वाले, और अपना वाला जो है हम आपको अपलोड कर देंगे
जो आपका ई मटेरियल होगा वहां पे मिल जाएगा आपको ये। इसका भी पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा जो आपने अभी पढ़ा है। हाँ, जो पढ़ाया हमने पीडीएफ कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे आपकी क्वांटम थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म पे हम आएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका 3 मिनट। और कोई प्रॉब्लम्स और कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं आप लोग? बहुत लेट मैम तो अभी नहीं है एडमिशन पोर्टल नहीं खुला। एडमिशन पोर्टल अभी नहीं खुला है, वो एडमिशन डेट्स में 20 मई तक बढ़ा दी गई। बढ़ा दी गई। एडमिशन में वो कोई तो इशू नहीं आएगा, वो तो कोई ऐसी बात नहीं आएगी आप लोगों के लिए। फीस की भी कोई अभी जल्दी उन्होंने नहीं कही है कि आप लोगों को जमा करनी है। इस बार फीस नहीं जमा होगी मैम। फीस कोई तुरंत जमा करने वाली कहा है ना, किसी बच्चे से नहीं मांगी जाएगी, गवर्नमेंट ने भी कहा है ना, जल्दी नहीं है फीस की अभी। तो मैम फॉर्म भर सकते हैं उसका ऑनलाइन फॉर्म? नहीं, वो सब कुछ हाँ, कर सकते हाँ हैं, वो भर सकते हैं। वो सब कुछ भर सकते हैं, हाँ भर सकते हैं। वो सब कर ही सकते हैं आप, सारा कुछ जो कर रहे हैं वो तो कर ही सकते हैं। देखना कैसे करके, फुल स्क्रीन हमारी नहीं आ रही है, इस पे हम देख रहे हैं। आपको स्क्रीन दिख रही स्क्रीन शेयर की है? हुई है आपने? स्क्रीन यस शेयर मैम, आपकी स्क्रीन शेयर्ड है। तो अगर हम स्टॉप शेयर करना पड़ेगा। ओके, हाँ तब यहाँ पर आएगा ये। तो फॉर्म की तो इतनी कोई वो नहीं है, हम देख भी लेंगे, हम पता भी कर लेंगे, वो अभी इतना बड़ा इशू नहीं है आप लोगों का। अभी तो पहले ये मालूम चले कि 14th के बाद क्या होता है। यस मैम। हाँ, अच्छा आप लोगों के सारे एग्जाम हो गए थे मिड टर्म? इलेक्टिव वाला रह गया। इलेक्टिव वाला रह गया है। यस मैम, इलेक्टिव वाले पेपर आ गए हैं बस। इलेक्टिव वाला रह गया, तो इलेक्टिव में आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है? क्योंकि अभी मैम हम लोग जियोलॉजी के हम हैं तो अभी कुछ पढ़ाया नहीं गया मैम। नहीं पढ़ाया गया है? फिजिक्स में भी सिर्फ एक क्लास हुआ। नहीं तो फिजिक्स तो लेना चाह रही हैं वो, लेकिन वो ये पूछ रही हैं अगर आप लोग इस तरह से आपस में पढ़ के बता पाए कितने बच्चे हैं सिलेक्टिव में, कोई तरीका है आप लोगों के पास इलेक्टिव का? मैम किस सब्जेक्ट की बात कर रही हैं? फिजिक्स में। मैम लिस्ट से पता चल सकता है। लिस्ट तो यहाँ नहीं है, लिस्ट तो डिपार्टमेंट में है ना, लिस्ट यहाँ कहाँ है? नहीं मैम, हम लोग के पास होगी लिस्ट कि फिजिक्स में किसको किसको मिला फिजिक्स। अच्छा ठीक, उसमें डिपार्टमेंट में लिखा हुआ है? यस मैम, लिखा रहता है। अगर वो लिस्ट हो तो आप लिस्ट को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग कुछ ऑनलाइन क्लासेस, और आप लोग जैसे आपके मैथ में कह रहे हैं हो पा रहे हैं, वैसे हम लोग को सोच रहे हैं फिजिक्स में भी अरेंज कर दें क्लासेस ये वाले। ठीक है, चलिए तो हम इसी टाइम पे परसों या डे आफ्टर टुमारो, यानी कि आज क्या है मंडे, हम वेडनेसडे को आपका नेक्स्ट क्लास इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। यस ठीक है, ओके। यस मैम। हम स्टॉप इसको कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हम यहाँ स्टॉप कर